Address of Swami Vivekananda at the World's Parliament of Religions, Chicago, September 11, 1893, from the website of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, Belur Math. Sisters and Brothers of America. It fills my heart with joy unspeakable to rise in response to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the mother of religions. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks, also, to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to different lands the idea of toleration. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites, who came to southern India and took refuge with us in the very year in which their holy temple was shattered to pieces by Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remnant of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I remember to have repeated from my earliest boyhood, which is every day repeated by millions of human beings. As the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea, so, O Lord, the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, is in itself a vindication, a declaration to the world, of the wonderful doctrine preached in the Gita. Whosoever comes to me, through whatsoever form, I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it often and often with human blood, destroyed civilization, and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But their time is come, and I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell of all fanaticism, of all persecutions with the sword or with the pen, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. N.I. Thank you for listening to the organizer. जय हिंद दोस्तों, वापस आया हूँ। क्या है जो आज को आज बनाता है, सोचो। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आप आज जो भी हो वो बीते हुए कल का नतीजा है। सरल शब्दों में बोलूँ तो यह है कि हमारा कल का प्रयास आज रंग लाती है और वही समाज को दिखती है। ऐसे ही कुछ खास थे स्वामी विवेकानंद जी। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। उनका जन्मदिन को भारत में नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। उनका माता पिता उनका नाम रखे नरेंद्रनाथ दत्त, लोग प्यार से उन्हें नरेन कहते थे। एक बार की बात है, उन्हें एक सपना आया। पहले उनको सपने में दिखा कि उनके पास अच्छी बड़ी घर, पैसा, शोहरत और बीवी है, और दूसरी एक सीधी सादी ज़िंदगी बिताने वाले सन्यासी जो दुनिया की सारी दुख कष्ट सहते हुए भगवान का निकट पहुंचना है। दोनों सपना उनको दिखा। उसके बाद बहुत सोच विचार के बाद ही उन्होंने मंक यानी सन्यासी बन के ज़िंदगी बिताने का निर्णय लिए और चल पड़े। हम विवेकानंद जी को क्यों पढ़ें, क्यों जानें? क्योंकि उनका अवदान भारत को श्रेष्ठ भारत बनाता है। विवेकानंद जी उस गौरवशाली है जो हमें हर हाल में हासिल करना है और करना भी चाहिए। चलिए कुछ सीखते हैं उनका जीवन से, हमारा जीवन सफल हो जाएंगे। 10 लाइफ लेसन्स मैं चुना हूँ, तो सुनिए। नंबर 1, ग्रो फ्रॉम इनसाइड आउट।
विवेकानंद बोलते हैं कि आपको अपने अंदर से पहले ग्रो करना होगा। आपके आत्मा को छोड़कर दूसरा कोई आपका टीचर नहीं है, जिससे आपकी बाहरी ग्रोथ खुद से हो जाएगी। नंबर 2, ऑलवेज बी हम्बल। हमें कोई कितना भी ऑफेंड करे, हमें हमेशा हम्बल रहना पड़ेगा। नंबर 3, रिजेक्ट एवरीथिंग दैट मेक्स यू वीक। कोई भी चीज़ जो आपको फिजिकली, इंटेलेक्चुअली या स्पिरिचुअली वीक बनाती है, उसे जहर समझकर रिजेक्ट करें। नंबर 4, कंपैशन एंड काइंडनेस शो योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। उनका यह मानना था कि हम अपने साथ होने वाला हर घटना को दूसरे की नज़रिया से देखें कि उनको कोई दर्द ना हो। हमेशा दूसरों का दर्द को अपने नज़रिए से देखें ताकि हम उनके साथ काइंड और केयरिंग हो जाए। नंबर 5, डू वन थिंग एट ए टाइम। स्वामी जी कहते हैं कि एक समय पर सिर्फ एक ही चीज़ करो और उसे करते वक्त पूरी जान लगा दो और बाकी सब भूल जाओ। नंबर 6, आस्क एंड वांट नथिंग इन रिटर्न। कभी भी वापस कुछ मांगो या फल की इच्छा मत करो। जो देना है वो दे दो और वो आपके पास खुद वापस आ जाएगा, लेकिन अभी इस बारे में चिंता मत करो। नंबर 7, लव योरसेल्फ टू लव अदर्स। विवेकानंद कहते हैं कि अगर मैं खुद को प्यार करता हूँ मेरी अनेक कमियों के बावजूद, तो कैसे मैं किसी दूसरे की चंद खराबियों के लिए उन्हें हेट कर सकता हूँ। हमें खुद को पसंद करना पड़ेगा जिससे हम दूसरों को भी प्यार कर सके। नंबर 8, नेवर बी अफ्रेड। स्वामी जी कहते थे कि आप ये सोच के डरो मत कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। अब बस किसी पर डिपेंड मत रहे और काम करता जाएं और ज़िंदगी जिए। नंबर 9, लाइफ इज़ एक्सपेंशन, हेट इज़ कंट्रैक्शन। हर तरह के प्यार तुम्हारी बाउंड्रीज और तुम्हारी सोच का दायरा बढ़ाएगा, लेकिन हर की सेल्फिशनेस तुम्हें और तुम्हारी सोच के दायरे को घटाएगी। इसलिए प्यार ही ज़िंदगी का मात्र रोल है। यू आर द सोल। ये 10वीं नंबर पॉइंट है। गुरुजी बोलते हैं कि तुम आत्मा हो जो हमेशा ही मुक्त और हमेशा ही सुखी रहती हैं। इस बात की गहराई में उतरो और तुम 1 मिनट में हर तरह के बंधन से मुक्त हो सकते हो। ये 10 पॉइंट थे जिनसे हमें सीखना है और उनको अपने जीवन में सुचारू रूप से कार्यान्वित करना है। चलिए, वीडियो अंत होने से पहले हम सब अपने आप से वादा करें कि हमें अपना भारत को गौरवशाली बनाकर ही दम लेना है। उठो, जागो और तब तक मत रुको ना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। उनका ये लाइन हमारे को इंस्पिरेशन देता है। ये बदलते भारत के हर एक को नया विवेकानंद बनना पड़ेगा। भारत की गौरव को वापस दिलाना पड़ेगा।